Because those who are standing behind, please, you can take your seat here if you are not comfortable there. Because I don't know for how long this. So I will start with a story. Yes. Suppose, like, who all are preparing for SSB? Just raise your hand. SSB. शरारती है तो इसको या तो कहीं पे डाल दो या कहीं रिलेटिव्स के घर पे भेज दो. तो आई वॉज लाइक दैट राम ओनली. मैं गाँव में ऐसे ही था. Because I used to disturb people of the villages. उनके कुछ कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया उनके, ऐसे ही कभी किसी के साथ लड़ाई कर दी. तो I was sent to one of my sister who was married at Rewari in Haryana. तो उन्होंने सिस्टर के पास भेज दिया. So at my village I was in third standard. I was in third class, and when I went to my new school, the principal sent me, okay, show me how to write dog. And somehow I write dog, and I don't know, her eyes were not in good condition. She read it Bog, B-O-G. So she told me, my father, that I will not even take this guy in first class. My father was like so rigid, and he said, मैम आप इसको लोगे, आप इसको अगर नर्सरी में भी लोगे तो मैं इसमें उसमें भी डालूंगा, तो इसको मैं गांव में नहीं रखूंगा. The same condition happened with me. I am telling my own story. So that thing hurt me. That time I took it on ego. That time, how she can say this to my father. And in my first class I scored 96%, and in half yearly. And in half yearly only principal came to me, and I was shifted to second class in between the year only, after the half yearly. Later on, from when I came to sixth class, like all of you youngsters, 6, 7, 8, adolescence age, I used to fight with my course mates and all, fighting and many more things you know better. So in my 8th class, again that principal came to me. She was also in hostel. She came to me and she told that after this year I will not keep you in hostel or even in school. You will be thrown out from this place or prepare for some other place. Okay, be ready. That I took that thing only my ego. And फिर मैं 9th में मैंने सोचा कि क्या करना है. तो one of my teacher, chemistry teacher, he was conferenced out 5 times, and he asked me casually, what do you want to become, sir, officer? I don't know how to become officer that time, कि NDA, CDS कुछ होता है. फिर उसने बोला कि कैसे बताएंगे सर, पता नहीं, but I want to be officer. फिर उसने बताया. And if I show you my report card of 9th standard, I still have photos. 28 March 2015. My aim is written there to become a lieutenant. Okay. I am not just telling my story because I want to tell. I am just telling you how to begin. You have to begin at a place. Okay. Just don't see someone that he is preparing for NDA, he is preparing for CDS, he is preparing for IIT, वगैरह, and I will also prepare. Okay. This will not lead you to a good place. I am telling you. First of all, just look inside you that how much capable. मेरे को 9th में ही नहीं पता था कि NDA क्या होता है. Then I came to know about NDA. फिर मैंने NDA के अलावा बाकी कोई एंट्री सोची नहीं. CDS, FCAT. फिर मैंने 10th किया. 9th I was the topper in 10th also. Then principal and director came to me, and I was called in the office, and they told me don't go to any coaching or academy, stay in the school only and prepare for your further studies. फिर मैंने 11th 12th सोचा कि 10 साल कर लिया, अभी कंटिन्यू करते हैं. तो फिर 11th 12th में I am not telling you can't go back to 11th 12th, or anyone is from 11th or 12th standard, still is there. Okay, hands down. So one advice from now onwards, you are taking coaching. That time I was not in the coaching 11th, I was on an hostel. The books which is provided to you, if you are in 11th, suppose math is the in NDA written exam, one is 300 math section and 600 GAT. GAT you will study, teachers will tell you, you will see previous question papers.
But for maths only specifically, I am telling you, if today you are taught set theory in school, complete it in school only, math section. Then take out the academy notes. Like in academy you have given some notes. दिए हुए हैं ना academy में? Yes sir. Set theory. Take out those. Try to solve those questions. Then again go to previous year questions. इस set theory में से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको किस तरीके से सोल्व करना होता है, और सर ने किस कोचिंग वाले ने किस तरीके से बताया, और स्कूल वाले ने. द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कोचिंग इज आई एम टेलिंग यू. स्कूल में तुम्हें स्टेप मार्किंग थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, योर माइंड विल बी सब्जेक्टिव माइंड हो जाता है. अकेडमी में तुम्हें कोचिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप माइंड सिखाया जाता है. अब तुम मैथ के 120 क्वेश्चंस अगर सोल्व करने बैठोगे तो तुम्हें एटलीस्ट 10 घंटे लग जाएंगे पूरा, अगर तुम स्टेप मार्किंग से करोगे. ठीक है, एटलीस्ट. बट कोचिंग में क्या, हिट एंड ट्राई फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड्स ये बताए जाते हैं. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द कोचिंग की, उस कोचिंग का कोचिंग में अगर नोट्स दिए तो उसको अपने मेथड से करो पहले, फिर शॉर्ट ट्रिक क्लासेस में पढ़ाया उस तरीके से करो. लाइक सिमिलरली आई डिड. मैं तो एनडीए जो अरिहंत की आती है पाथफाइंडर, वो है ना, तो मैं कैसे, मैंने 11th में ही ले ली थी. मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता नहीं था 11th में, सिर्फ मैथ पे फोकस करता था. एनसीईआरटी स्कूल में कंप्लीट की, और पाथफाइंडर का पहला चैप्टर जैसे सेट थ्योरी. मैं कोचिंग में नहीं था तो मेरे पास एक्स्ट्रा पाथफाइंडर के अलावा कुछ मटेरियल नहीं था, बट आई वाज हैविंग वेरी गुड स्टाफ फ्रॉम यूपी आल्सो. और मैथ टीचर पंकज श्रीवास्तव, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ही इज स्टिल प्राउड ऑफ मी फॉर दैट. वो मेरे को रात को, अगर मैं हॉस्टल में 2 बजे भी सोता था रात को उसके रूम पे क्वेश्चन सोल्व करने, तो उस टाइम भी मुझे उठ के बैठाता था. ही वाज वेरी सपोर्टिव. तो टीचर ये नहीं, तुम ये नहीं कहोगे कि टीचर सर आप नहीं पढ़ा रहे, तुम अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ये कर रहे. और ऐसे किसी की इमेज नहीं बनती कि यार ये तो कर ही नहीं पाएगा. ऐसा कोई टीचर नहीं सोचता कि यार ये कर नहीं पाएगा, ये ऐसे ही है, बस ऐसे ही आ जाता है. ठीक है, आर्मी में बेस्ट थिंग अबाउट द आर्मी, तुम्हें हर टाइम ऑप्शन देते हैं आर्मी एनडीए, कि तुम कभी भी छोड़ के चले जाओ. कोई किसी के जबरदस्ती से नहीं आता, तुम अपनी मर्जी से जाते हो उस प्लेस पे. ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती धक्का दे दिया तुम एनडीए कर रहे हो. ठीक है, यू स्टिल हैव द चॉइस थ्रू आउट द 3 इयर्स कि तुम कभी भी छोड़ सकते हो अकेडमी. क्योंकि आर्मी को वो नहीं चाहिए कि बस ऐसे ही आ गया. दे नीड दैट मोटिवेशन, पैशन, एवरीथिंग. तो वो चीज तुम्हें दिखानी पड़ेगी. 11th 12th मैंने मैथ सेक्शन ऐसे ही कंप्लीट किया. लाइक 11th में 14 चैप्टर्स आर देयर इन मैथ एंड 12th में 16. ऐसे ही है शायद, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, बट आई नो 14 चैप्टर्स. तो अरिहंत के वही मैंने 14 चैप्टर्स 11th में कंप्लीट कर लिए. और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 से मेरे टाइम में 2019 तक जो भी थे, मेरे 2012 से थे. 2012 से 2019 तक मेरे पास क्वेश्चन पेपर थे. उनमें से सेट थ्योरी में से कौन सा है, बाइनरी नंबर में से कौन सा है, जैसे जैसे चैप्टर्स होते गए मैं उनको तभी सोल्व करते गया. तो दिस इज बेस्ट एडवांटेज फॉर द बिगिनर्स जो अभी कर रहे हैं 11th 12. ठीक है, और फिर मैंने जस्ट 12th के बाद एनडीए एग्जाम दिया और आईआईटी दिया. तो आईआईटी मेंस हो गया और एनडीए नहीं हुआ मेरा रिटर्न के लिए. ठीक है, फिर मैं सोचा कि यार आईआईटी हो गया, एनडीए क्यों नहीं हुआ. फिर मैं आईआईटी एडवांस के लिए घर वालों ने प्रिपरेशन के लिए भेजा. जस्ट बिफोर 2 days बिफोर द एग्जाम मैं वहां से आ गया कि आई सॉ दैट मूवी, दैट टाइम बागी 2 वाज देयर, बागी मूवी आई सॉ वन डे. और फिर दैट डे आई रियलाइज, आई एम नॉट टेलिंग यू द स्टोरी, आई एम टेलिंग द एग्जैक्ट थिंग, क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन और वो कुछ नीचे स्टोरी बता के, आई एम टेलिंग यू आई सॉ दैट मूवी बागी. देन आई रियलाइज यार मैं क्यों जा रहा हूँ आईआईटी, मुझे बनना तो ये था. दैट डे आई लेफ्ट, आई वाज लिविंग इन माय वन ऑफ माय आंटीज हाउस. आई लेफ्ट at 1400 hours. I left that house. I went to my home. I told my mother कि मेरे रूम में जाना ही नहीं उसने. ठीक है, then I went to a coaching. Then I realized कि कोचिंग जरूरी क्यों है उस एग्जाम के लिए. ठीक है, one thing I learned about the coaching कि नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, हम कॉन्फिडेंस में ज्यादा कर देते हैं. एनडीए में हार्डली इफ यू क्रॉस द 40-45 क्वेश्चंस एंड दे आर करेक्ट, यू विल इजीली एबल टू पास इट. ठीक है, बस क्या होता है नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा करते हैं. तो मैंने अपना फॉर्मूला बताया कि 120 क्वेश्चन से पहले वही क्वेश्चंस करूंगा जो 100% श्योर हो. जैसे 100% श्योर 40 क्वेश्चन. अगर तुम कोचिंग का मटेरियल और प्रीवियस 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे ना, 40 क्वेश्चन इजीली एनीवन कैन अटेम्प्ट. ठीक है, जस्ट स्टेप्स डिजिट चेंज होती है, सेम वो आते हैं.
पर स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन हार्ड डाल देते हैं, हम वही पढ़ के प्रेशर में आ जाते हैं कि यार रिटर्न टफ है इस बार, ठीक है। तुम स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे थोड़े, उनको छोड़ के अगर नीचे जाओगे यार ये तो ये था, When once you leave the examination hall, you will realize कि यार ये तो इतना सिंपल था मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फर्स्ट के 5 क्वेश्चन में नहीं आ रहे, जस्ट लीव दैट। 40 क्वेश्चंस शॉर्ट अटेम्प्ट किए, देन यू विल रियलाइज कि कहीं में 2 आंसर पे डाउट है, या तो ए होगा या सी होगा या बी या डी, कोई 2 में, उनको जस्ट सर्कल करो, ठीक है। जो 100% श्योर हो 40 और सर्कल के एटलीस्ट 20, उनमें से फिर दोबारा उन पे आओ 10 अगर 10 क्वेश्चन उनमें सोचे ना इजीली 45 सोल्व करने के बाद इजीली रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है इंडिया का, ठीक है। रिटर्न इज नॉट टफ बट वी आर मेकिंग इट टफर, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्क्स अटेम्प्ट कर देते हम और उसमें आंसर शीट में मिस्टेक कर देते हैं। मैंने अपना जो फर्स्ट रिटर्न दिया था स्कोर 405 मार्क्स 405 मार्क्स, बट आई वाज कॉन्फिडेंस आउट, मेरे एसएसबी में 272 मार्क्स थे। नाउ डेज एसएसबी के मार्क्स भी आ जाते हैं ऑनलाइन, 272 मार्क्स थे एंड पासिंग मार्क्स इज 370, एसएसबी का पासिंग मार्क्स है 370 और रिटर्न का कट ऑफ 330 से वो भी 330 350 का। तो उस टाइम 142 के कोर्स के टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, जो नवंबर में एग्जाम हुआ था उस टाइम नवंबर में, तो नवंबर में एग्जाम दिया था। फिर उससे पहले मेरा मार्च में एयरफोर्स एक्स ग्रुप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप समवन इज प्रिपेयर, सो आई वाज क्वालिफाइड फॉर दैट एग्जाम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, मेडिकल सब कुछ हो चुका था। फिर मुझे पता मार्च में 21 अप्रैल को एग्जाम था, तो सेकंड टाइम जब मैंने रिटर्न का प्रिपरेशन किया जस्ट आई टुक 20 डेज ओनली, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था पहले, जो भी मेरे स्टडी मटेरियल कोचिंग का मटेरियल था वो पढ़ा हुआ था, सोल्व किया हुआ था, जस्ट एक बार रिवाइज करना था और वही रिवाइज करके मैं गया वहां से। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, ना यूट्यूब पे ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट करंट अफेयर्स अपडेट रखी अपनी और मैथ का वही सेक्शन पढ़ के गया मैं, जो मेरे पास अपना मटेरियल था। एंड बिलीव मी कि जो पाथफाइंडर पूरा है वो मेरे पास सोल्व था अपना, जो पाथफाइंडर के 30 चैप्टर्स थे उनके सारे सोल्व थे मेरे पास, ओल्ड वन न्यू वन नहीं, ब्लैक प्रिंट आती है व्हाइट आती थी पहले, वो पाथफाइंडर सोल्व थी मेरे पास पूरी। 20 डेज वो पढ़ के गया, आई स्कोर 352 मार्क्स इन माय सेकंड 143 थर्ड रिटर्न एग्जाम और 342 कट ऑफ थी, 352 जस्ट 10 मार्क्स से पास आउट 3। और फिर मेरे रिटर्न में भी 395, एसएसबी में 395 आए थे एंड मेरिट में मैं 351 था, 4 आउट ऑफ 447 आई वाज 51st, हाँ 351 ही था शायद, आई एम नॉट श्योर, 350 अबव था मैं मेरिट में। तो मुझे डाउट था कि कॉल लेटर आएगा नहीं आएगा, बट आई लेफ्ट माय कॉलेज हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कि या तो एयरफोर्स जाना है और या तो एनडीए लास्ट अटेम्प्ट था, बिकॉज माय फादर प्लान्स की अब एसीसी एंट्री देखूंगा, तो मैंने सोच लिया था कि या तो एयरफोर्स जाना है या एनडीए। सो माय एयरफोर्स कॉल लेटर केम ऑन 26 नवंबर एंड जब दिसंबर आया 24 दिसंबर को 348 मेरिट वाले का कॉल लेटर आ गया था, दिसंबर 24 को। 25 दिसंबर क्रिसमस हॉलीडे और 26 की मॉर्निंग मेरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का अंबाला रिपोर्टिंग था। सो माय फादर टोल्ड मी कि नहीं जाना, आई सेड कि नो। देन आई रियलाइज इन द इवनिंग कि यार आज ट्रेन है रात को अंबाला दिल्ली से, चलो चलते। देन आई वेंट, मैं चला गया और मेरा एक दोस्त था उसको मैं अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी का पासवर्ड और सब कुछ बता गया था कि ये मेरा पासवर्ड है, ये अगर कॉल लेटर आए तो जस्ट मैसेज मी, क्योंकि एयरफोर्स सेंटर में जैसे ही तुम रिपोर्टिंग करते हो योर फोन विल बी सबमिटेड देयर। फोन सबमिट हो गया था मॉर्निंग 5 o'clock और फिर इवनिंग में 2000 आवर्स में मोबाइल मिला मुझे। दैट टाइम आई केम टू नो कि हाँ कॉल लेटर आया हुआ है और वो दैट वाज दैट नाइट इट्स टिल माय 12 कि कैसे मैं गांव से निकला और फिर कैसे प्रिपरेशन की और 12 के बाद कैसे फाइनल अटेम्प्ट में मैंने एनडी दिया कि यार अभी तक मैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जाता था आई विल बी इक्विवेलेंट टू 140, जो कि अभी कमीशन हो चुके हैं 140 वाले 148 कोर्स, बट लेट गया द थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वो सब ठीक एक अच्छे के लिए होता है। डोंट गेट नर्वस विद दैट कि अब नहीं हुआ अब नहीं हुआ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और होपफुल। अपने ऊपर उम्मीद रखो, ये नहीं कि एक शायरी सुन ली किसी से, एक शायरी पढ़ ली और फिर 1-2 दिन मोटिवेशन दे, वो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। टॉप पे हर कोई पहुंच सकता है बट वहां पे मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और लाइफ में कभी भी ये नहीं कि डोंट बी लाइक स्टेबल वाटर, पानी को कभी एक जगह देखा है तो कीचड़ बन जाता है, ठीक है। बी फ्लुएंट,
हमेशा बहते रहो, ठीक है। गो विद द फ्लो, बी फॉर्मलेस, पानी की तरह अपने आप को चेंज करो, ठीक है। चेंज विद द सराउंडिंग्स, ये नहीं कि कोई बोल रहा है कुछ, कोई कुछ कह रहा है, डोंट फोकस, तुम्हें अपना एम पता होना चाहिए, ठीक है। द बेस्ट थिंग आई विल टेल यू कि अगर कोई ऑफेंड ना हो उस वर्ड से, तो बेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, तुम पहले अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। लाइक अगर मेरे को 6 बजे उठना है, आई एम टेलिंग यू आई स्टिल वेक अप एट 5, तो फिर मैं अभी भी रनिंग करने जाता हूँ विलेज में दोस्त वगैरह के साथ जो आर्मी की ओपन भरती देखते हैं। मुझे कोई शर्म फील नहीं होती ऐसा कि मैं इनके साथ क्यों कर रहा हूँ, आराम से जाता हूँ उनके साथ रनिंग वगैरह करता हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं होता। बेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने डिसाइड अपना टाइम में लिखा है कि हाँ मैं 6 बजे उठूंगा, तो जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है। अगर तुम 6 बजे सोच के 7 बजे उठे ना, फिर होल डे विल बी, आई विल नॉट से द वर्ड, ठीक है, पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन का शेड्यूल। फिर तुम 6 के 7 को शिफ्टिंग करते रहोगे, ठीक है। इफ योर एम इज कि हाँ मुझे 6 बजे उठना है, 6 to 6:30 में रनिंग जाऊंगा, गो फॉर दैट। 6:30 मेरी कोचिंग क्लास है, तो मैं जाऊंगा उस पर, ठीक है। और आज 3 घंटे मैथ पढ़ना है 9 से 12, तो मैं मैथ पढ़ूंगा उसमें, ठीक है। बेस्ट प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू कि फोन है, ठीक है। When I went to my SSB coaching, I deleted everything except WhatsApp, Instagram, Facebook, everything I deleted, ठीक है। और उसके बाद आधे ही छोड़ के यूज करने की, ठीक है। They will be temporary, I am telling you, ठीक है। If you will get success, people will respect you, ठीक है। नहीं तो वो नहीं कहा क्या क्या बोलते क्या हाल, जो जब तभी लोग पूछते हैं हाल जब जेब में होगा माल। माल इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, विद योर डिग्निटी एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट, जब तुम्हारी इज्जत होगी कहीं पे। एंड 2 थिंग रिमेंबर, एरोगेंस एंड रेस्पेक्ट। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस एंड रेस्पेक्ट। ईगो, जब तुम्हें लगे कि तुमने कुछ किया है, दैट इज एरोगेंस, बट जब दुनिया को लगे कुछ किया है, तो दैट इज रिस्पेक्ट, ओके। डोंट जस्ट आर्मी में ऐसे मत जाने कि मेरे को पैसे कमाने, ऐसे कुछ नहीं। आर्मी विल गिव यू मनी, यू विल नॉट एबल टू, यू विल नॉट इवन कम टू नो कि स्पेंड क्या करना है, ठीक है। जस्ट मेरा ये, आई एम टेलिंग यू माय ओन एक्सपीरियंस और माय मोटिवेशन टू गो टू एनडीए कि एनडीए नहीं, आर्मी ऑफिसर कोई भी एंट्री हो, जस्ट माय एम वाज कि मुझे इज्जत कमानी है, ठीक है। दैट वाज माय ओनली एम, माय सोलो एम, एंड आई स्टिल लिव अप टू दैट। मैंने सर को भी बोला और जो मुझे रिस्पेक्ट करता है, I generally go to that place, ठीक है। I was called in my school, I was also welcomed by my village people also। और जहाँ भी जितने भी लोगों ने बुलाया, I went with that dignity and that motivation and that respect, and I am still in that stage कि I still want to learn, कि हर जगह जहाँ से सीखे, ठीक है। Still anything I missed out, अपनी journey SSB I will not tell you because there are enough my seniors, I will not say even a word because I am just novice to this thing। अभी तो मैंने आर्मी जस्ट शुरू की है, और यहाँ पे my seniors, colonel, till lieutenant general, they are there, they are best, I hope they are best। I am telling you, if you meet with an army officer, just wherever you meet him, just ask him his SSB experience, okay। सर इंटरव्यू कैसा था, जस्ट ट्रेनिंग, ठीक है। So these things will keep you motivated throughout। ये नहीं कि एक बंदा, अगर मैं I am literally telling you, अगर मैं यहाँ पे अगर 5 दिन कंटिन्यू आ गया ना, so half of the strength will go just because of that lack of motivation, that consistency is not there। I am sure अगर मैं 5 दिन लगातार आ गया, और मैं अभी अगर मैं कल ही बोलूँ कि tomorrow again I will take a lecture, 20% of the strength will again go, because फिर ऐसे motivation, और उन 20 को देख के next 30-40% का motivation कम होता जाता है, ठीक है। Be that person कि जिसको देख के लोग कहेंगे यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, हम भी करते हैं फिर थोड़ी, ठीक है। Just last thing for 1 minute, okay। I hope no one is from business family background, कोई business या है कोई, at least 5% होगा, ठीक है। just hands down, and I hope who are from middle class family, ठीक है, just hands down, ठीक है, hands down। farmers, just ठीक है, just for 30 seconds, okay, just close your eyes and think about your mother and father, okay। जस्ट ये था कि हाँ 3 साल सर्वाइव करना है, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जीतना है, ऐसा कुछ नहीं था, अपॉइंटमेंट बनना है, बिकॉज आई वाज फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, फार्मर बैकग्राउंड फैमिली,
विलेज, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मिलिट्री स्कूल। तुम पिछले पीजीएम प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल की लिस्ट उठा के देख लो, पिछले शायद 50 साल तक सैनिक मिलिट्री स्कूल वाले मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट 95%। कोई हार्डली 1 या 2 होगा जो पब्लिक स्कूल का होगा, ठीक है। एंड टिल माय 5th टर्म आई वाज रनिंग 6th इन मेरिट ओवरऑल कोर्स में।